নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। আলিপুরদুয়ারের পর পুনরায় বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদিজি। আমাদের সেদিকে লক্ষ্য থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ারে জনসভার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অপারেশন সিন্দুর নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সেই নিয়ে অনেক বিতর্ক ও জলঘোলা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ মাননীয় মমতা ব্যানার্জির এই ধরনের কথাবার্তা মোটেই মেনে নিতে রাজি নই। গণতন্ত্রে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ থাকবেই, কিন্তু তার একটা শালীনতার সীমা থাকা উচিত। মমতা ব্যানার্জির অভিধানে শালীনতা বলে কোনো কথা নেই। 26-এর ভোটে মমতা ব্যানার্জি বাঙালি আবেগে শান দিতে চাইছেন। বাঙালি অস্মিতাকে কাজে লাগিয়ে মমতা ব্যানার্জি রাস্তায় নেমেছেন ও নানা ফেসবুক পোস্ট দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের অপশাসন নিয়ে ফেসবুক পোস্ট দিয়েছেন। দুজনের এই দ্বৈরথ বেশ জমে উঠেছে এবং আমরা উপভোগ করছি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই নাকি ধরা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ধরা হচ্ছে, যাদের কাছে কোনো প্রমাণিত ডকুমেন্ট নেই। হ্যাঁ, আছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সরকারের দেওয়া ইদানিংকালের অবৈধ প্রমাণপত্র। মমতা ব্যানার্জি এই অবৈধ প্রমাণপত্রকে ভ্যালিড বলেছেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী চক্রান্তের শিকার হয়ে মমতা ব্যানার্জি অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে হিন্দু শরণার্থীদের গুলিয়ে দিতে চাইছেন। এক্ষেত্রে একটি সুবিধা আছে, কারণ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা একই। তাই মমতা ব্যানার্জি বিজেপিকে সামনে না পেয়ে হিন্দিভাষী উত্তরপ্রদেশের হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সারাদিন আটকে রেখে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছেন। এই আবহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজি বঙ্গ সফর। এদিকে বঙ্গ মিডিয়ায় দিলীপ ঘোষের নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। মনে হচ্ছে মিডিয়ায় দিলীপ ঘোষকে আস্থা করে নিক্ষেপ করবে। সেই দিলীপ ঘোষ দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাবেন কি যাবেন না, তিনি দিল্লি গেলেন কেন, এই সব বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চর্চা হচ্ছে। একসময় মিডিয়া যেমন বাবুল সুপ্রিয়কে ফুলিয়ে ঢোল বানিয়েছিল, এখন শোনা যাচ্ছে তিনি রাজনীতি ছেড়ে গানের জগতে ফিরে যাবেন। তার ফ্রন্ট-ফুটে খেলা আর হলো না। মমতা ব্যানার্জি এবার আর তাকে বিধানসভার টিকিট দেবেন না। দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাবুল সুপ্রিয়র মতো হতে যাচ্ছে। মাননীয় মোদিজি শিল্পনগরী দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে এসেছেন। তিনি 5,000 কোটি টাকার উপর মূল্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন। তারপর মোদিজি তার রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করেছেন। মাননীয় মোদিজি তার বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গে ইদানিং তৃণমূল রাজত্বে যে সকল ঘটনাগুলো ঘটেছে তার প্রত্যেকটি তুলে ধরেছেন। সেটা গুন্ডা ট্যাক্স থেকে শুরু করে আরজিকর কাণ্ড, কসবা ল কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ, মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা ও অনুপ্রবেশ। মাননীয় মোদিজি বলেছেন, কান খুলে শুনে রাখুন, অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় মোদিজি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি বিকশিত ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত বাংলা করবেন। তিনি 26-এর নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করার আবেদন করেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মাননীয় মোদিজির স্বভাব আগুন লাগিয়ে বানচাল করার চেষ্টা হয়েছে। আসুন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির বক্তব্য শুনে আজকের পর্বটি সমাপ্ত করছি। भारत माता की, भारत माता की। বড়রা আমার,
প্রণাম নেবেন। ছোটরা ভালোবাসা। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे कई चित्र बना करके ले आए हैं। वो शायद कुछ देना चाहते हैं। अगर आपने अपना नाम पता उस पर लिख दिया है तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा और मैं मेरे एसपीजी के लोगों से कहता हूं कि जो सब बच्चे कुछ न कुछ अपना कला लेकर के आए हैं, जरूर आप इसको ले लीजिए सबसे। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीच में बारिश भी बड़ी तेज आ गई। आपने वो मुकाबला भी कर लिया। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ये देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। देश को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। ये बीसी रॉय जैसे विजनरी नेतृत्व की धरती है, जिन्होंने दुर्गापुर को बड़े सपनों, बड़े संकल्पों के लिए चुना था। पश्चिम बंगाल ने देश को द्वारिका नाथ टैगोर जी जैसे रिफॉर्मर दिए, जिन्होंने गुलामी के कालखंड में बैंकिंग रिफॉर्म पर काम किया। उद्यमों से कैसे समाज का भला हो सकता है, ये करके दिखाया। इस भूमि पर सर बीरेन मुखर्जी हुए, जिनके जीवन से, जिनके विजन से भारत में स्टील उद्योग को मजबूत नींव मिली। ऐसे महान लोगों ने ही पश्चिम बंगाल की महान विरासत को आगे बढ़ाया है। और तभी पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले, व्यापार कारोबार को बल मिला,
लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे, लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बांग्ला उन्नयन चाहे। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि 21वीं सदी का ये समय नई टेक्नोलॉजी का है। बंगाल के उद्योगों को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज जो गैस आधारित इकोनॉमी का काम आगे बढ़ रहा है, स्टील प्लांट को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का काम हुआ है, वो भारत सरकार की इसी सोच का नतीजा है। दुर्गापुर कोलकाता गैस पाइपलाइन से यहां के उद्योगों को नया जीवन दान मिलेगा। ये जो गैस पाइपलाइन है, इस पर केंद्र की भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि यहां सीएनजी वाली गाड़ियां चल पाए, आपके पैसे बचे, यहां नए नए कारखानों को बल मिले और सबसे बड़ी बात, इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है, वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। साथियों, मैं आज आपको, पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल
देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरे इस विश्वास का कारण है पश्चिम बंगाल में समर्थ और प्रतिभाशाली मेरे नौजवान भाई बहन हैं। यहां नदियां भी हैं और समंदर भी है। पश्चिम बंगाल सैकड़ों वर्षों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र रहा है। यहां पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहां प्राकृतिक संसाधन है। यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए, मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबेई আসল परिवर्तन আসবে। साथियों, विकसित भारत बनाने में पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी संकल्प के साथ बीजेपी आपका आशीर्वाद मांग रही है। आप अपने आसपास देखिए, असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा, ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए भाजपा की तरफ से मेरा यह आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो।